Hello dear students, in this video lecture we will study dispersion of white light by a glass prism. Okay, so it is a very important topic for the 10th board examination. Okay, so let's start this lecture. So as you can see here that a white light is incidenting on a prism. Okay, so when it incidents on a prism, a refraction will take place, and because of refraction this white light is splitting into a 7 colors. Okay, now as you can see in these 7 colors, a red color is deviates least and the violet color deviates most. Okay, or I can say that angle of deviation for the red color is least and the angle of deviation for the violet color is maximum. Okay, so why it is happening we will see in this lecture. So as you can see here, this is a white light, this is a beam of a white light. So a white light is a combination of 7 colors. Okay, now these 7 colors you can remember by Vibgyor. So in Vibgyor, V means violet color, I means indigo, B means blue, G is for green, Y is for yellow, O for orange and R for red. So as you go from violet to red, violet से आप जब red की तरफ जाएंगे, so that the wavelength will increase. और I want to say that the wavelength of each color is different. जो white light है, white light क्या है, 7 कलर का combination है और हर एक जो कलर है, हर एक कलर की जो wavelength है वो different है. ओके, सो violet से जब आप red की तरफ जाते हैं तो wavelength जो है वो increase होती है. ओके, तो हर एक कलर जो है उसकी wavelength different है और violet जो कलर है उसकी wavelength क्या होती है, least होती है और red कलर की wavelength क्या होती है, maximum होती है. ठीक है, so wavelength of a red color is maximum and wavelength of a violet color is minimum. Now because the wavelength of a violet color is least, so that its speed is also least. Okay, and because of the wavelength of red color is maximum, so that speed of red color ray is also maximum. तो ये जो white light है, white light के beam है, ठीक है, ये जब 7 कलर्स इसके बनेंगे तो हर एक कलर की जो रे है, हर एक कलर की जो लाइट रे है, हर एक कलर की जो लाइट रे है उसकी वेवलेंथ अलग होगी और वेवलेंथ अलग होने की वजह से हर एक की जो स्पीड है वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी. तो रेड कलर की जो लाइट रे होगी उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी और वायलेट कलर की जो लाइट रे है उसकी स्पीड क्या होगी, मिनिमम होगी. ठीक है, नाउ इफ द स्पीड ऑफ red light ray is maximum, because the speed of red light ray is maximum, so that the angle of deviation for the red light ray is minimum. ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप, इनका रिलेशन है आपस में. ठीक है, रिलेशन क्या है, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो स्पीड भी ज़्यादा होगी और स्पीड ज़्यादा है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा. ठीक है, तो जैसे रेड कलर है, रेड कलर की जो लाइट रे है उसकी जो वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा है और इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी. रे की, रेड कलर की जो लाइट रे है उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी और उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, मिनिमम होगा. ऐसे ही जो वायलेट कलर है, वायलेट कलर के लिए वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है इस कलर कॉम्बिनेशन में, सबसे कम इस स्पेक्ट्रम में सबसे कम जो वेवलेंथ है वो कौन से कलर की है, वायलेट कलर की है. तो वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, इसलिए इसकी स्पीड भी क्या होगी, सबसे कम होगी और स्पीड सबसे कम होने की वजह से जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो मैक्सिमम किस कलर की रे के लिए होगा, वायलेट के लिए. ठीक है, सो एज यू कैन सी हियर व्हेन वी गेट दिस स्पेक्ट्रम. तो स्पेक्ट्रम का मतलब क्या था, स्पेक्ट्रम मीन्स अ बैंड ऑफ कलर्स. So this band of color is called spectrum. So as you can see in this band of colors that red color is at the top and the violet color is at the bottom. तो red color top पर क्यों है, because इसका angle of deviation सबसे कम है. इसका angle of deviation सबसे कम क्यों है, because इसकी जो wavelength है वो maximum है और wavelength maximum होने की वजह से जो red color की light ray है उसकी जो speed है वो क्या होगी, maximum होगी. ठीक है, इसी तरह से जो violet color है, violet color की जो wavelength है वो सबसे least है और इसकी वेवलेंथ सबसे लीस्ट होने की वजह से इसकी स्पीड भी लीस्ट होगी और स्पीड लीस्ट बिकॉज इट्स स्पीड इज लीस्ट, सो डेट द एंगल ऑफ डेविएशन इज मैक्सिमम फॉर द वायलेट कलर. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. आगे देखते हैं, जो रेड कलर होता है, रेड कलर इज डेविएटेड द लीस्ट एज आई एक्सप्लेन्ड यू एंड द वायलेट कलर इज डेविएटेड द मैक्सिमम. ओके, नाउ हियर यू कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट व्हेन वी स्टडीड द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, जब हमने वो स्टडी करा था तब वहाँ पर कोई डिस्पर्शन जैसा फिनोमिना नहीं था. तो वहाँ डिस्पर्शन फिनोमिना क्यों नहीं था, बिकॉज हमने वहाँ पर जो लाइट रे यूज़ की थी वो लाइट रे कौन सी थी, मोनोक्रोमेटिक लाइट.
ओके, मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब होता है, मोनो मतलब सिंगल और क्रोमेटिक मतलब कलर, तो वहाँ पर हमने सिंगल कलर की लाइट रे को यूज़ किया था, ठीक है। तो बिकॉज वो सिंगल कलर की लाइट रे थी, इस वजह से वहाँ डिस्पर्शन जैसा कोई फिनोमिना नहीं हुआ। यहाँ पर जो हम लाइट रे यूज़ कर रहे हैं वो कैसी लाइट रे यूज़ कर रहे हैं, वाइट लाइट, और बिकॉज वाइट लाइट जो है वो किसका कॉम्बिनेशन है, 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन है, इस वजह से, और सब जो सारे 7 कलर्स हैं उनकी वेवलेंथ अलग अलग है, और वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से हर एक का जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो भी क्या है, अलग अलग है। इस वजह से हमें क्या मिला यहाँ पर, जो फिनोमिना है उसको क्या होता है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट, ठीक है। अगेन ये डिस्पर्शन होता क्या है, डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट मीन्स होता है अ वाइट लाइट स्प्लिट्स इनटू अ 7 कलर्स व्हेन इट पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब वाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कलर्स में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है। तो 7 कलर्स में स्प्लिट होना ही क्या कहलाता है, डिस्पर्शन, ओके, डिस्पर्शन ऑफ अ white light. Okay, now let's move to next. Now here you can see some important points, that one is the splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. Okay, the dispersion of white light occurs because colors of white light travel at different speeds through a glass prism, which I already explained you. Now when white light consisting of 7 colors falls on a glass prism, each color in it is refracted by a different angle, okay, with the result that 7 colors are spread out from a spectrum. Okay, so all these points I explained you. Now let's see here next topic. So next topic is recombination of spectrum colors to give white light. Okay, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो colors spectrum हमें मिला है, जैसे this is a prism PQR, so when a white light pass through this glass prism it splits into a 7 colors. Now here we use another glass prism into a reverse position. Okay, ये दूसरा ग्लास प्रिज्म है P डैश Q डैश R डैश, जो कि कैसा रखा हुआ है, रिवर्स पोजिशन में रखा हुआ है. Now what happens, the refraction again take place. Okay, the refraction will take place in this glass prism also. जो रिवर्स पोजीशन में रखा हुआ है ग्लास प्रिज्म, उसमें भी रिफ्रैक्शन होता है. अब रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स. लाइट रे क्या होती है, बेंड हो जाती है, जिसको क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन कहा जाता है. तो लाइट रे यहाँ पर भी बेंड हुई थी, पहले वाले प्रिज्म से भी, और यहाँ पर भी बेंड हुई है, ठीक है. अब जो बेंडिंग, मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग फर्स्ट प्रिज्म में था, वही मैग्नीट्यूड ऑफ बेंडिंग क्या होता है, सेकंड प्रिज्म में भी होता है, बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन. सो इट कंपनसेट इट. जो पहली बार में जितना बेंडिंग हुआ है उतना ही बेंडिंग दूसरे प्रिज्म में भी होता है, बट कैसा होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है. सो डेट व्हेन वी गेट अ लास्ट रे, दिस लास्ट रे इज अ, जो आखिर में हमें रे मिलती है वो कैसे मिलती है, हमें व्हाइट लाइट. जो लास्ट में हमें लाइट मिलेगी वो कैसे मिलेगी, व्हाइट लाइट. ओके, सो दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम colors to give white light. So it is a activity in a 10th board syllabus. Okay, तो ये एक्टिविटी आपसे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और इस एक्टिविटी में आपको ये डायग्राम ड्रॉ करके उसमें करना होता है उस एग्जाम में, ठीक है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो फॉर द 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, नाउ लेट्स सी हाउ रेनबो फॉर्म. ओके, सो the rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky, which is produced by the dispersion of sunlight by raindrop in the atmosphere. Okay, so this is for rainbow. Now how the rainbow formed, now you can see here. So there is a sun and a sunlight comes, and when this sunlight comes and incident on a water droplet or a raindrop, so then what happens on this surface at the point B, on this surface the white light splits into a 7 colors which we call dispersion. white light यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से जो white light है वो क्या होगी, 7 colors में split हो जाएगी, जिसको क्या कहा जाता है, dispersion. Okay, now each color then travels and incident on a inner surface of this water droplet or the raindrop. inner surface पर जाकर जो है each color की जो ray है वो क्या होती है, यहाँ पर incident होगी, और when each color ray incident on this inner surface the total internal reflection will take place. यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपको पता होगा क्या होता है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जब लाइट रे ट्रेवल करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, ठीक है, तो क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट बैक इनटू अ सेम मीडियम.
सेम मीडियम में वो क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, डेंसर मीडियम में ही वापस क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जिसको क्या बोला जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नाउ दीज रेज विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम द इनर सरफेस बिकॉज ऑफ TIR. नाउ व्हेन दे रीचेस दिस at this surface at the point D, okay, then again refraction will take place, and because of this refraction this spectrum of colors will come out and we can see it as a rainbow. Okay, so this is a process by which rainbow formed. Okay, so I hope now